Hello students, myself Anuradha Gupta and today I will take topic liquid rock model. So first of all, this model is propounded by the Neil Bohr 1937. Neil Bohr, this is a theoretical topic. Neil Bohr in 1937. Okay, liquid rock model was propounded by Neil Bohr in 1937. According to this model, nucleus can be assumed by a liquid drop. This model is based on the three features of nucleus. First feature is what? First feature is the nucleus is filled with incompressible substance. मतलब जो नाभिक है वो असंपीड्य पदार्थ से भरा हुआ है. Nucleus is filled with incompressible fluid. Incompressible fluid. And the density of nuclear matter is very large. The density of nuclear matter does not depend on the mass number of the nucleus. जो भी incompressible fluid fill है substance में, first of all इसकी density, जो first point क्या कहता है, nucleus is filled with incompressible fluid and the density is very large and its volume does not depend on the mass number A. Okay, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता and it is independent number of nucleons. Second point क्या कहता है नील बोर का? Second point कहता है कि ये जो there are short range of nuclear force amongst the nucleons. जो nucleons है, what is the meaning of nucleons? Nucleons समझते हैं ना? What is the meaning of nucleons? It means nucleons mean it is talking about proton and neutron. Proton and neutron combinedly called as nucleon. Okay, so there are short range nuclear force among the nucleons. It means proton और neutrons के बीच में short range का nuclear force apply होता है. And same nucleons experience the same nuclear force. Short range का nuclear force ये experience करते हैं. Short range force. Second point, first point क्या था कि the nucleus is filled with incompressible fluid. The density of matter is very large and does not depend on the mass number. And nucleon, second point क्या है? The nucleons means proton and neutron. Second point is there are short range of nuclear force between the nucleons. Clear? The third point is nuclear force is saturated. Saturated means what? The nucleons exert force on only some neighboring. Suppose this is one nucleon and there is other nucleons. So these nucleons experience some force because of these nucleons. So every nucleons have effective area. In this area अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी न्यूक्लियॉन्स उसके रेंज में आते हैं तो वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन अगर उसके दूर कोई न्यूक्लियॉन है तो वो इस न्यूक्लियॉन्स के कारण ये फोर्स फील नहीं करेगा. मतलब ओनली नेबरिंग न्यूक्लियाई एक्सपीरियंस फोर्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, जो न्यूक्लियॉन्स है केवल जो फोर्स है, जो बल है, अपनी नेबरिंग न्यूक्लियाइज पे ही अप्लाई करेंगे. इट मीन्स न्यूक्लियर फोर्स इज सैचुरेटेड. क्योंकि एक समय
डिस्टेंस बढ़ने पर जो और न्यूक्लियॉन्स है इनमें ये फोर्स एक्सपीरियंस करने की पावर नहीं रहेगी. सो this is the model B. This model is based on these 3 points. First point, second point and third point. These 3 points, this model is based on these 3 points. Okay, so there are some similarities between the in a liquid drop model and nucleus. Okay, liquid drop nucleus, liquid drop में और nucleus में कुछ similarities हैं. ठीक है, और कुछ सिमिलैरिटीज़ की वजह से न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप की तरह बताया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि आखिर क्या सिमिलैरिटीज़ है लिक्विड ड्रॉप और न्यूक्लियस में कि न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप के फॉर्म में कंसीडर किया गया है और उसमें ये मॉडल लिक्विड ड्रॉप मॉडल लगाया गया है ना. लिक्विड ड्रॉप मॉडल लगाया जा रहा है, इट मीन्स न्यूक्लियस में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड ड्रॉप की तरह, है ना. अब वो क्या सिमिलैरिटीज़ है वो हम अभी देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या देख रहे हैं, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द लिक्विड ड्रॉप एंड न्यूक्लियस. तो फर्स्ट सिमिलैरिटी क्या कहती है, ये कह रहा है कि फर्स्ट जो सिमिलैरिटी है, दिस शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप is spherical, we know that. Okay, liquid drop का जो शेप है वो कैसा है, spherical है ना. Why? Just because of surface tension. The shape of liquid drop is spherical due to surface tension. Similarly, the nucleus is also spherical. Why? Because of nuclear force, right? So the nucleus inside the nucleus behave like a molecules in a liquid. जैसे लिक्विड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं, ठीक उसी प्रकार न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन होता है वो वैसा ही बिहेव करता है. On the basis of this, the radius of nucleus must be proportional to the radius of nucleus must be proportional to the cube root of mass number. R is proportional to e to the power 1/3. This is the first point. What is the first point? The liquid drop. What is the similarity between liquid drop and nucleus? Yes, the liquid drop is spherical because of surface tension. The nucleus is also spherical due to nuclear force. The nucleon inside the nucleus behave just like a molecule behave in a liquid. On this basis, the radius of nucleus is proportional to the mass number of must be proportional to the mass number cube root of mass number. This is the first similarity. The second similarity is what? As the density of liquid drop does not depend its molecule. जो liquid drop की density होती है वो आयतन पर निर्भर नहीं करती, does not depend on molecule. Similarly, the density of nucleus also does not depend on the volume of nucleus. Right? This is the second similarity. What is the second point? As the density of a spherical drop of liquid does not depends on its volume. Similarly, the density of nucleus is also does not depend on the volume of nucleus. This is the second point. Okay. Then the third point. What is the third similarity? सेकेंड क्या बताया, जिस प्रकार लिक्विड का घनत्व भी आयतन पर निर्भर नहीं करता, न्यूक्लियस का नाभिक का आयतन भी उसके घनत्व पर निर्भर नहीं करता. दी थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट कहता है कि जस्ट टेक वन एग्जांपल इन अ लिक्विड. ओके, वी नो दैट इन अ लिक्विड मॉलिक्यूल आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन. हमेशा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं. ओके, फिर what will happen just because of motion? Whenever as a result of mutual collision, this random motion is
what is a result of mutual collision. After in the mutual collision, the kinetic energy of some molecules increases to an extent that they are able to cross the mutual attraction force and they leave the liquid surface. They leave the liquid surface and escape out from the surface. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. आप पानी को देखिए ना, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, जब आप पानी गर्म करते हो तो पानी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, चूँकि टेम्परेचर बढ़ चुका है तो पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से इधर उधर भागने लगते हैं, है ना, उनकी स्पीड बढ़ जाती है. जब उनकी स्पीड बढ़ती है उनका तो वो इतना ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है कि वो अपने जो एरिया ऑफ अट्रैक्शन है उसको छोड़ करके वो लिक्विड से बाहर निकल जाते हैं, है ना, और बाहर निकल जाते हैं मतलब वो इवेपोरेट हो जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इवेपोरेशन. सिमिलरली इन द अल्फा एमिशन इवेपोरेशन, क्लियर, जस्ट लाइक इवेपोरेशन अल्फा एमिशन हैपन इन न्यूक्लियस. In alpha emission, what happened? Due to the random collision of different molecules. Suppose this is nucleus and here proton, neutrons, nucleons. So due to the random collision of nucleons, different nucleons, the kinetic energy of some nucleons increases to an extent. Then they cross the nuclear attraction. They cross the nuclear attraction and escape out from the nucleus and in the form of alpha particle. Thus जैसा कि इवेपोरेशन हो रहा है वैसा ही क्या हो रहा है, अल्फा एमिशन भी हो रहा है न्यूक्लियस में, राइट. तो यहाँ पर ये दोनों में क्या है, सिमिलैरिटीज है. ठीक. थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट बताया सिमिलैरिटी में कि जैसा कि फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि लिक्विड ड्रॉप क्या रह रहा है, लिक्विड ड्रॉप जो है वो भी स्फेरिकल होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन. न्यूक्लियस भी न्यूक्लियर फोर्स की वजह से क्या रहता है, स्फेरिकल. ये फर्स्ट सिमिलैरिटी है. और जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो हमेशा मास नंबर की मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ मास नंबर. सेकेंड पॉइंट बताया हमने कि जैसे डेंसिटी जो लिक्विड की होती है वो डेंसिटी वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, उसी प्रकार जो न्यूक्लियस की डेंसिटी भी होती है वो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करती. थर्ड हमने बताया कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस लिक्विड पे होता है वही प्रोसेस क्या होता है, अल्फा एमिशन होता है न्यूक्लियस में, जस्ट बिकॉज ऑफ द मोशन एंड म्यूचुअल कोलिजन बिटवीन द न्यूक्लियस. ठीक. तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स हमने देख लिया. अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं. लिक्विड में जो इंटरनल एनर्जी होती है, एज द लिक्विड हैज़ द इंटरनल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द थर्मल वाइब्रेशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, द न्यूक्लियस also has binding energy. Just like internal energy, the nucleus has binding energy. Clear? Now, the next point is dissimilarity. This is a similarity between the nucleus and liquid model, liquid drop, and some dissimilarity is also between the liquid drop and nucleus. डिससिमिलैरिटीज़. अब क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ है वो देख लेते हैं. जो वन मेजर डिससिमिलैरिटी है वो है एज वी नो दैट इन अ लिक्विड कोहेसिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. संसंजक बल लगता है अणुओं के बीच में. किसमें, लिक्विड ड्रॉप में. तो जो कोहेसिव फोर्स होता है दैट इज लॉन्ग रेंज अट्रैक्टिव फोर्स.
जो ना लिक्विड ड्रॉप में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोहेसिव फोर्स लगता है. कोहेसिव फोर्स इज लॉन्ग रेंज अट्रैक्टिव फोर्स. दिस अट्रैक्टिव फोर्स acts only at a distance greater than the 10 raised to power minus 9 meter. Okay, this attractive force, the long range attractive force, acts only at a distance greater than 10 raised to power minus 9 meter. Okay, but at a distance less than, if r less than 10 to the power minus 9 meter, then what will happen? Repulsive force act. Repulsive force act. Second. On the other hand, what will happen in a nucleus? Nuclear forces are the, as we know, in the nucleus, short range nuclear force is applicable. Short range force is applicable between the nucleus, and this force, long range nucleus force, means this force acts less than 10 raised to power minus 14 meter. If distance is greater than 10 raised to power minus 14 meter, then repulsion happens. ठीक है. अगर अणुओं के बीच की दूरी, अगर लिक्विड ड्रॉप में अणुओं के बीच की दूरी 10 पावर माइनस 9 से ज़्यादा है तभी अट्रैक्टिव फोर्स होगा. अगर कम हो गया तो रिपल्शन होगा. न्यूक्लियस में थोड़ा अलग होता है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है. शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच में अगर डिस्टेंस लेस देन 10 पावर माइनस 14 मीटर है तब क्या होगा? तब अट्रैक्शन होगा. अदरवाइज अगर ग्रेटर हुआ तो क्या होगा? रिपल्शन होगा. ये मेजर डिफरेंस है इनके बीच में. ठीक है. अब ये मॉडल सक्सेसफुल क्यों नहीं था, अनसक्सेस क्या है इसका, तो ये थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो मॉडल है, ये जो हमारे स्टेबल न्यूक्लियाइज है लाइक 4He2, लाइक 12C6, 16H8O, ये आपके हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ऐसे स्टेबल न्यूक्लियाइज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ठीक है. तो ये इन सबको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, इसलिए इसमें ये अनसक्सेस, इसका एक तरह से ये अनसक्सेस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल है. लेकिन ये सक्सेस भी रहा. क्यों? क्योंकि लिक्विड ड्रॉप मॉडल के ही बेस पे एक सेमी एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव किया गया. सेमी एम्पिरिकल फार्मूला, सेमी एम्पिरिकल फार्मूला किसके लिए डिराइव किया गया? बाइंडिंग एनर्जी के लिए, बाइंडिंग एनर्जी एंड एटॉमिक नंबर पे. ठीक है. इसमें ये सेमी एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे. तो इसका अनसक्सेस क्यों था? क्योंकि ये स्टेबल न्यूक्लियाइज जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जैसे हैं उनको एक्सप्लेन करने में ये सक्सेसफुल नहीं था. बट सक्सेसफुल क्यों रहा? बिकॉज इसने सेमी एम्पिरिकल फार्मूला इस थ्योरी के बेस पे डिराइव किया गया, जो कि किसके लिए था? बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के लिए था. और इसको हम अभी नेक्स्ट अपने क्लास में उसको एक्सप्लेन करेंगे. ओके, थैंक यू.